Good morning, class. Today we are going to start our next topic, and chapter is theory of demand. And our topic is movement along with demand curve or change in quantity demand. So now movement along with demand curve. Movement occur ड्यू टू चेंज इन प्राइस. मूवमेंट जो हो रही है डिमांड में, उसका रीजन क्या है, किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस में चेंज होने की वजह से लीड्स टू द मूवमेंट. डिमांड में मूवमेंट होती है. आइदर और मूवमेंट हो सकती है. डाउनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. अगर हमारी डिमांड जो है वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग हो रही है, इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. और अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अगर मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. उस मूवमेंट को आप क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. नाउ द डेफिनेशन इज when quantity demand for a commodity change due to change its price keeping other things constant, it is termed as change in quantity demand. It means that quantity demand change due to change in प्राइस. किसकी वजह से चेंज हो रहा है डिमांड में? प्राइस में चेंज होने की वजह से. कीपिंग ऑल अदर फैक्टर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की, इनकम की, टेस्ट की, एक्सपेक्टेशन की. ठीक है, इन सभी फैक्टर को हम क्या मान रहे हैं? रिमेन कॉन्स्टेंट. इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज वेल एज मूवमेंट ऑफ डिमांड. इसके दो नाम हैं. हम इसको चेंज भी कह सकते हैं एज वेल एज इसको मूवमेंट ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड. Definition is when the quantity demand of a commodity rise due to fall in price, other factor remain the same. It is called extension of demand. It means that quantity demand rise हो रही है. किसकी वजह से rise हो रही है? Fall in the price. Price fall हो रही है. ठीक है, तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, then demand is high. डिमांड क्या होगी? हाई होगी. प्राइस फॉल होने पर इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. इसी को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. नाउ डिमांड शेड्यूल है. इफ प्राइस इज 10 देन क्वांटिटी डिमांड इज 100. इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी 5 इट मीन्स प्राइस 4 देन द क्वांटिटी डिमांड इज 150. इट मीन्स क्वांटिटी डिमांड राइज. इफ देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. नाउ डिमांड कर्व. On y-axis, demand curve is drawn with the help of scale and pencil. On the y-axis represent the price and x-axis represent the quantity demand. Highest value is 10, so measure is 5 and 10. Highest value is 150, then measure is 100 and 150. Initially price 10, then the quantity demand is 100. Price is 10, then the quantity demand is 100. If price fall, price 10 से कितनी हो गई है? 5. Then the quantity demand is 150. Quantity demand is 150. Join the point and draw the demand curve. Point को join कर दिया, demand curve draw कर दिया. Demand curve move in a downward sloping. कैसे move कर रहा है? Downward sloping. Such sloping is known as extension of demand. इसी को हम क्या कहेंगे? Extension of demand. Clear? Now the next point is contraction of demand. When the quantity demand of a commodity fall due to rise in price, other factor remain the same. इस माइंड को ध्यान में रखना है. टेस्ट, प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, जितने भी अदर फैक्टर पढ़े थे हमने रिलेटेड ऑफ प्राइस गुड्स, इनकम, टेस्ट, expectation, all the factor remain constant. If the price of commodity rise, प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है? राइज हो रही है, then the quantity demand is 4. There is also an inverse relationship between price and quantity demand. Now the price demand schedule is price or quantity demand. In initial price is 10, then the quantity demand is 100. If the price rise 10 to 15, then the quantity demand fall 100 to
50. डिमांड क्या हो गई है? फॉल, प्राइस राइज हो गई है, बिकॉज देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. Now demand curve is drawn with the help of scale and pencil. On the y-axis represent the price, on x-axis represent the quantity demand. Highest value is 15, then measure is 10 or 15. Highest value is 100, then the measure is 100 and 150. Now the point is located. If price is 10, then the quantity demand is 100. Price है 10, quantity demand 100. If the price rise, price हो गई 15, then quantity demand 4. 15. Here join the point and draw the demand curve. Point को join किया, demand curve draw कर दिया. अब demand curve move in upward direction. इसको हम backward direction भी कह सकते हैं. 100 से 150 हुआ, तो हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन कहते हैं. इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व. बिकॉज क्वांटिटी 100 से कितनी हो गई है? 50. तो डिमांड कर्व शिफ्ट टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए हम इसको और क्या कह सकते हैं? बैकवर्ड ऑफ डिमांड कर्व. ओके क्लास. नाउ इसको हम एक पॉइंट और भी कह सकते हैं. जो पहले हमने डिमांड कर्व बनाया था एक्सटेंशन को, फॉरवर्ड डायरेक्शन. डिमांड कर्व 100 से 150. ठीक है. ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच.